close a door a few times. Observe the hinge of door carefully. जो डोर है उसे बार बार खोलना बंद करना ऐसे अगर हम करें तो, और वो जो जॉइंट होता है उसका, उसे हिंज जॉइंट बोलते हैं. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. वो डोर को मूव करने को अलाउ करते हैं. मतलब किससे होते हैं? वो हिंज जॉइंट होता है, इसलिए वो जो डोर है वो आगे पीछे होता है. Let us look at the kind of movement allowed by hinge. अब make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5. Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center. As shown, make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the roll up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the roll-up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. What have constructed in figure 8.5 is different from hinge, of course, but it illustrates the direction in which hinge allows movement. The elbow has a hinge joint. जो एल्बो होता है वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? हिंज जॉइंट होता है. दैट अलाउ ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. वो क्या करता है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स? Fixed. Next point, fixed point. Some joints between bones in our head are different from those we have discussed. The bones cannot move at the joint. Such joints are called fixed joints. तो जो joints होते हैं वो मूव नहीं करते. The bones cannot move. मतलब जो bones होते हैं उस जगह के वो मूव नहीं करते हैं. उसे क्या बोला जाता है? हिंज जॉइंट फिक्स जॉइंट बोला जाता है. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? जब हम हमारा मुंह खोलते हैं, you can move your lower jaw, तो हमारा जो नीचे वाला जॉ होता है वो हिलता है. Try to move your upper jaw. Now are you able to move it? जो अपर जॉ है वो हमारा हिलता नहीं है. There is a joint between upper jaw and rest of head at fixed point. जो अपर जॉ होता है मतलब वहाँ पे क्या होता है? जो जॉइंट होता है, there is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is fixed joint. वहाँ पे fixed joint होता है इसलिए वो हिलता नहीं है. We discuss only some of joint that connects parts of our body. What gives the different parts of body their different shapes? If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape. अगर हमें डॉल बनानी है तो हमें पहले उसका क्या करना पड़ेगा? फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड अ स्केलेटन. ये जो फ्रेमवर्क होता है उसे क्या बोला जाता है? स्केलेटन बोला जाता है. How do we know that this is the shape of a human skeleton? हमें कैसे पता चलता है कि ह्यूमन का स्केलेटन है? We know shapes of different bones in our body. हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं उसके शेप के ऊपर से हमें पता चलता है कि ये ह्यूमन का शेप है. We can have some idea about shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. हमें उसके आइडिया होनी चाहिए. One way we could know this shape better would be look at X-ray images of the human body. जब हम एक्सरे निकालते हैं तो उसमें हमें ये ऐसा जो स्केलेटन है उसी तरह से वो एक्सरे में हमें दिखाई देता है. Did you or anyone in your family ever had an X-ray of any part of your body taken? आपकी फैमिली में अगर किसी के बॉडी का किसी भी पार्ट जो पार्ट होता है उसका अगर एक्सरे निकाला है तो उसमें हमें दिखाई देता है. डॉक्टर यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजुरी. तो
कोई इंजुरी हो हमारे इंटरनल ऑर्गन को, तो वो डॉक्टर को उसमें से समझ में आती है. दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स. द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी. एक्सरे में हमारे बॉडी का जो बोन होता है उसका शेप समझ में आता है. फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग्स एंड अपर लेग. जो बोन्स है हमारे बॉडी में, जो फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग, उसके जो बोन्स है वो देख लेना. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट एंड कंपेयर दिस विथ एक्सरे इमेजेस. जो हमारे नी जॉइंट होते हैं और एंकल के जॉइंट होते हैं वो एक्सरे में देखना और उसकी कंपेयर करना. बेंड योर फिंगर. आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट. जो फिंगर्स है उसे बेंड करना और हर पॉइंट पे वो हिलते हैं क्या, बेंड होते हैं क्या. हाउ मेनी बोन डज योर मिडल फिंगर हैव. तो कितने बोन्स होते हैं हमारे जो हर फिंगर है, बैक है, पाम है, उसमें कितने कितने बोन्स होते हैं. योर रिस्ट फ्लेक्सिबल. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स. वो छोटे छोटे स्मॉल बोन्स से बने होते हैं. तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स. तो ये जो स्मॉल जो बोन्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, कार्पेल्स बोला जाता है. व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन. अगर एक ही बोन होता तो क्या होता. टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल. डीप ब्रीथ लेना और उसे रोकना. फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ चेस्ट. तो ये उसे चेस्ट को, चेस्ट के जो बोन्स है उसे और जो बैकबोन होती है उसे प्रेस करना, और जो मिडल और बैक का पोर्शन होता है. काउंट एज मेनी रिब्स बोन्स ऑफ हर्स. तो चेस्ट के जो रिब्स होते हैं उसे काउंट करना एज पॉसिबल. ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स. तो ये जो फिगर दिखाई गई है 8.10 में, उससे कंपेयर करना. वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट. जो रिब होते हैं वो क्यूरियसली बेंट होते हैं. दे जॉइन द चेस्ट बोन्स. वो क्या करते हैं, चेस्ट बोन को जॉइन करते हैं एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. तो वो उसे जॉइंट होते हैं तो वो रिब केज बनता है, उसका जो बॉक्स बनता है और उसका रिब केज बन जाता है. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट. तो 12 रिब्स होते हैं हमारे ईच चेस्ट के साइड में. सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज. तो जो इंटरनल पार्ट्स है वो प्रोटेक्टेड होते हैं ये केज में. आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज. अपने फ्रेंड को बोलना कि वो उसके टोज को टच करे, वो नीज बेंड ना करके. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. तो नेक से स्टार्ट करना और अपना जो फिंगर है उसे मूव करना डाउनवर्ड की तरफ. व्हाट यू फील इज़ द बैकबोन. तो आपको जो उसकी जो फीलिंग होती वो क्या होता है, जो होता है बैकबोन. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स. वो छोटे छोटे बोन से बना होता है. कॉल्ड वर्टब्रेट. तो वो वर्टब्रेट से बना होता है. द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ. तो बैकबोन में क्या क्या कंसिस्ट होता है, 33 वर्टब्रे. द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स. तो जो रिब केज होता है वो यहाँ पे जॉइन होता है. इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड. अगर बैकबोन सिर्फ एक बोन का बना होता तो आपका फ्रेंड जो है, मतलब हम कोई भी बेंड नहीं कर सकते. मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस. अगर आपके फ्रेंड को उसे बोला कि खड़ा रहे, बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल. हैंड जो हैंड है वो प्रेस करके वॉल की तरफ, एंड आस्क कर टू पुश द वॉल. अगर उसे बोलना कि वॉल को पुश कर तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर. दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स. तो ये जो शोल्डर के जो बोन्स होते हैं उसे बोला जाता है शोल्डर बोन्स. ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली. दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स.
तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनी होती है, पेल्विक बोन से बनी होती है। दे एनक्लोज द पोर्शन, वो पोर्शन एनक्लोज करती है ऑफ यूर बॉडी बिलो द स्टमक। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, जिसके जो हमारे सिट का पार्ट होता है। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। जो स्कल है मतलब हमारी जो ब्रेन की जो कवटी होती है उससे बोला जाता है स्कल इज मेड ऑफ मेनी बोन जॉइंट टुगेदर। तो बहुत सारे जो बोन्स होते हैं उससे ये हमारी स्कल बनती है। फिगर 8.14 इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी द ब्रेन। वो हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का उसे एनक्लोज करती है। We discuss many bones and joints of our skeleton. There are some additional parts of skeleton that are not as hard as bones. तो skeleton के ऐसे भी पार्ट होते हैं कि वो इतने हार्ड नहीं होते बोन जैसे, which can be bone. These are called cartilage. मतलब जो ऐसे पार्ट है कि जो क्या नहीं होते, बेंड नहीं होते हैं, that are not hard. वो कैसे हार्ड नहीं होते हैं, हमारे जैसे बोन होते हैं वैसे वो हार्ड नहीं होते हैं और बेंट होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कार्टिलेज। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। आपको ये फील हुआ होगा कि ये जो बोनी पार्ट्स है वो बेंट होता है क्या। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर, वहाँ पे बोन्स नहीं होते। इजंट इट, डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव। तो जो ईयर के नीचे का और ऊपर का पोर्शन है उसमें डिफरेंस होता है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स, जो अपर पार्ट होता है वो भी हम देखते हैं ऑफ द ईयर, दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब अबाउट। वो ईयर लोब जैसा सॉफ्ट नहीं होता। नॉट एज हार्ड एज बोन, वो बोर्ड जैसा जो बोन जैसा हार्ड भी नहीं होता। दिस इज अ कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ बॉडी। जो कार्टिलेज है वो हमारे बॉडी के जॉइंट में फाइंड होता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केल्टन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स। हमें पता है कि हमारे जो स्केल्टन है वो बोन से बना है। जॉइंट एंड कार्टिलेज यू कुड फील बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ स्केल्टन इन योर नोटबुक। जो नीट स्केल्टन है वो उसे अपनी नोटबुक में निकालना है। वी हैव लर्नड अबाउट बोन्स इन अवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अस मूव इन डिफरेंट वे। व्हाट मेक द बोन्स मूव द वे दे डू नॉट। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो, टच योर शोल्डर विद द थंब। डू यू सी एनी चेंज इन अपर आर्म। ये जो एक्शन है वो करते समय हमारे जो मूवमेंट है उसमें कुछ चेंज आया क्या। ऑब्जर्व सोलन रीजन इज द अपर आर्म, दिस इज मसल। जो सोलन रीजन होता है हमारा अपर आर्म का वो क्या होता है, वो उसे बोलते हैं मसल बोले जाते हैं। द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल्स होते हैं वो बल्ज होते हैं कॉन्ट्रैक्शन से। इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। आपके जो आर्म्स होते हैं उसे नॉर्मल पोजिशन में लाना। व्हाट हैपन टू द मसल, इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो शॉर्टर बनते हैं, स्टीपर एंड थिकर। इट पुल्स द बोन, वो स्टीपर बनते हैं और थिकर बनते हैं। और वो बोन, इट पुल्स द बोन, और वो क्या करते हैं, बोन को पुल करते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। मसल पेयर में काम करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब आकुंचित होते हैं, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जो बोन है वो उसकी डायरेक्शन में पुल किया जाता है। द अदर मसल्स ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन, जो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जो मसल होता है, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स। जो रिलैक्स मसल है
वो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, बोन की टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में होता है। व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्स अ मसल कैन ओनली पुल, वो जो मसल है वो पुल किया जाता है, इट कैन नॉट पुश। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू हैव अ बोन, तो दो मसल को वो साथ साथ में काम करना पड़ता है तब वो बोन बनता है। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर फॉर मूवमेंट, मसल के लिए उसकी मूवमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक, अर्थवर्म। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जो अर्थवर्म है गार्डन में उसे ऑब्जर्व करो। जेंटली लिप इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, उसे फिल्टर पेपर पे डालो, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, उसकी मूवमेंट देखो। देन प्लेस इट ऑन स्मूथ ग्लास प्लेट, उसे स्मूथ ग्लास प्लेट के ऊपर डालो। स्लीपरी सरफेस, ऑब्जर्व मूवमेंट, उसकी अलग अलग जो मूवमेंट है वो चेक करना। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म के बोन्स नहीं होते हैं। तो उसके क्या होते हैं, इट हैज़ मसल्स, तो उसके सिर्फ मसल्स होते हैं, उसकी बॉडी में बोन्स नहीं होते हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, उससे वो क्या करता है, मसल होते हैं उससे वो शॉर्ट भी करता है और एक्सटेंड भी करता है बॉडी को। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म, उसकी मूवमेंट में वो क्या करता है, फर्स्ट एक्सटेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, वो फ्रंट पार्ट जो होता है वो पहले एक्सटेंड करता है और बाद में नेक्स्ट पार्ट करता है। पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीज द रियर एंड, तो वो पहले वो वाला पार्ट फिक्स करता है। इफ देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स, बाद में वो बॉडी को शॉर्टन करता है, शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड, और वो आगे जाता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इससे वो थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जाता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड, वो उसकी जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है ऐसी मूवमेंट वो रिपीट करता रहता है। अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, वो सॉइल से जाता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, उसकी बॉडी जो है वो एक स्लिमी सब्सटेंस है, उसे सिक्रेट करती है, जिससे वो क्या होता है, वो सिक्रेट करता रहता है टू हेल्प द मूवमेंट, जो सिक्रेशन होता है स्लिमी सब्सटेंस का उससे उसे मूवमेंट में हेल्प होती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ग्राउंड, वो कैसे अपनी बॉडी का पार्ट फिक्स करता है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रोजेक्टिंग आउट द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो मसल से कनेक्ट होते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, वो ब्रिस्टल की वजह से उसकी जो ग्रिप है वो ग्राउंड की तरफ अच्छे से होती है। द अर्थवर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल, जो उसे खाना है वो सॉइल में से खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ मटेरियल दैट इट इट्स, उसकी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो बाहर फेंका जाता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, इसी वजह से जो अर्थवर्म है वो बहुत यूज़फुल होता है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्नेल। ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, स्नेल जो है अपने गार्डन में फील्ड में उसे ऑब्जर्व करो। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, उसके बैक के ऊपर जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है उसे ऑब्जर्व करो। दिस इज कॉल्ड द शेल, उसे बोला जाता है, जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है उसे बोला जाता है शेल। एंड इट द आउटर स्केल्टन ऑफ स्नेल, वो आउटर जो पोर्शन होता है वो होता है उसके स्नेल का। बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन से बना नहीं होता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट, वो उसका जो यूनिट होता है वो सिंगल होता है। एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग अलॉन्ग, प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट,
तो जो स्नेल है उसे ग्लास प्लेट के ऊपर डालना है एंड वॉच, और उसे ऑब्जर्व करना। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब वो मूविंग स्टार्ट करता है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड, तो उसे हल्के से उठा लेना। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, उसके नीचे से जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व करना। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ स्नेल में कम आउट ऑफ द ओपनिंग इन, उसकी जो थिक स्ट्रक्चर है वो हमें उसमें से दिखाई देती है। द शेल, द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूड मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, उसके जो थिक स्ट्रक्चर है, उसके जो फूड है, जो उसके पैर है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, वो जो ग्लास प्लेट है उसे टिल्ट करो। द वेवी मोशन ऑफ फूड कैन बी सीन, उसकी जो वेवी मोशन है वो हमें दिखाई देती है। द वेवी मोशन ऑफ फूड कैन बी सीन इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवर्म, तो उसकी जो मूवमेंट है उसे अर्थवर्म से कंपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉकरोच। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, वो कॉकरोच जो है वो फ्लाई भी करते हैं और एयर में जो फ्लाई भी करते हैं और वॉकिंग भी करते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके जो पेयर्स है वो 3 पेयर होती है। दीज हेल्प इन वॉकिंग, वो वॉकिंग में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केल्ट, वो जो बॉडी है वो कवर करती है उसकी। हार्ड जो आउटर स्केल्टन होता है, दिस आउटर स्केल्टन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर, ये जो प्लेट्स होती है एक दूसरे को जॉइन होती है एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, और उससे उसकी मूवमेंट होती है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, 2 पेयर होती है उनके विंग की जो बॉडी से अटैच होती है हेड को। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो कॉकरोच है उनके डिस्टिंक्ट मसल्स ऐसे होते हैं वो लेग्स के नियर होते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, जब वो फ्लाई करते हैं तो उनके जो मसल्स है वो हिलते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग, बर्ड फ्लाई करते हो क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो वेल सूट होती है फ्लाइंग को। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनके बोन्स हॉलो होते हैं, लाइट होते हैं, इसलिए वो फ्लाई कर सकते हैं। द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, उनके जो हिंड लिम होते हैं वो टिपिकल होते हैं वॉकिंग और पर्चिंग के लिए। द बोनी पार्ट्स ऑफ फोर लिम आर मॉडिफाइड एज विंग, जो उनका जो बोनी पार्ट होता है फोर लिम का वो विंग में मॉडिफाइड किया जाता है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो शोल्डर बोन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ब्रिस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, जो ब्रिस्ट बोन्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं मसल को। विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, वो अप और डाउन ऐसे मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिश। मेक अ पेपर बोट, पुट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, पेपर की बोट बनाना है, उसे पानी में भेजना है और वन नैरो और पॉइंटिंग फॉरवर्ड को उसे पुश करना है। डिड इट गो इनटू वाटर इजीली, वो इजीली जाती है क्या, वो हमें ऑब्जर्व करना है। फिश ऑल्सो हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ बोट इज समवट लाइक अ फिश, आपने ऑब्जर्व किया क्या कि ये जो बोट का शेप है वो फिश जैसा ही है। द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ बॉडी, उनका हेड और टेल का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, वो मतलब कम कम होता जाता है एंड की तरफ। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, इसे स्ट्रीमलाइन बोला जाता है। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. ये जो shape होता है वो flow करता है easily and fish to move in water. The skeleton of fish is covered with strong muscles. जो skeleton है वो cover होते हैं strong muscles से. During swimming, muscles make the front part of body curve to one side. जब वो स्विमिंग करते हैं तो उनके जो मसल्स होते हैं वो फ्रंट पार्ट जो होता है वो कर्व होता है वन साइड में एंड टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड द अपोजिट साइड, जो टेल पार्ट होता है वो अपोजिट साइड में
स्विंग करता है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। जो 8.24 में दिया है उसी तरह से उसकी बॉडी कर्व होती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड। ये जर्क लेते हैं और बॉडी को पुश करते हैं। अ सीरीज ऑफ सब जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। ये जो सीरीज है जर्क की वो फिश को स्विम करती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ टेल। ये जो फिन्स होती है उसके टेल की, उसी के वजह से ये पॉसिबल होता है। फिश also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of body। फिश के जो फिन्स होते हैं उसके हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। टू कीप डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। जब वो स्विमिंग करते हैं तो डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं वो फिन लाइक फ्लिपर्स होते हैं उनके फिट के ऊपर। टू हेल्प देम टू मूव इजीली इन वाटर। तो उनको पानी में तैरने के लिए, जाने के लिए वो हेल्पफुल रहते हैं। हाउ डू स्नैक्स मूव। तो स्नैक कैसे मूव करता है। स्नैक हैव अ बिग लॉन्ग बैकबोन। उसका जो बैकबोन कैसा होता है, लंबा होता है। दे हैव मेनी थिन मसल्स। उनके मसल्स बहुत होते हैं लेकिन थिन होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो उसका जो बैकबोन लंबा है फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट टू द बोन। मसल्स भी बैकबोन को कनेक्ट होती है। रिब्स एंड स्किन, वो रिब और स्किन से भी कनेक्ट होती है। द स्नैक्स बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स। स्नैक की जो बॉडी है वो कर्व होती है। ईच लूप ऑफ स्नैक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ये जो हर लूप होता है वो उसे आगे पुश करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप्स गिव इट दिस पुश। वो जो लूप होते हैं उससे वो क्या आगे आगे जा सकता है। एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए वो स्ट्रेट नहीं चल सकता। वी लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमने अलग अलग एनिमल की जो बोन्स है उसकी स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में पढ़ा है। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन। तो ये जो एंशिएंट फिलोसोफर था एरिस्टोटल, उसने उसका गेट ऑफ एनिमल ये जो बुक है उसमें खुद को एक सवाल पूछा था। व्हाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट दैट दे डू हैव एंड हाउ टू दिस बॉडी पार्ट हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू। और वो कैसे हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है। व्हाई टू लुक्स फॉर 2 legs फॉर ह्यूमन एंड 4 फॉर काऊ एंड बफेलो। तो हर एनिमल की जो लेग्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के, क्या उसके नंबर जो है वो अलग अलग क्यों होते हैं। सो मैनी क्वेश्चन परहैप वी हैव लुक फॉर सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर। तो हमें अब इसे और ढूंढने की कोशिश करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये बॉडी मूवमेंट से जो चैप्टर है इसमें जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो एनिमल है, जैसे हमने अर्थवर्म, फिश, स्नैक्स, ह्यूमन, बर्ड्स, ये इसके जो मूवमेंट्स है वो कैसे होती है और वो किस तरह से होती है। जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो उस फ्लाई करते हैं तो फ्लाइंग के लिए कैसे सूटेबल होती है। उसके बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं इसलिए वो फ्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हर एनिमल की जो डिफरेंस है वो हमने इसमें देखा है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे